part of India where history breathes. Life continues until one moment that changes everything. हाँ, एक मोमेंट है जहाँ पर शुरू में मैं जब सन 2002 में जुड़ा था स्वास्थ्य सेवा संगठन से, WHO से, यूनिसेफ में भी काम किया, तो उस समय मैं काफी हद तक बदला हूँ। काफी हद तक मूवमेंट हुआ वहां पर, लोगों से मिला, बड़े बड़े अधिकारियों से मिला, बाहर से लोग आते थे, उनसे मिला, और काम करने में बड़ा एक्सपीरियंस रहा। घर घर रहा, ग्राउंड किया, फील्ड बैक किया, फील्ड में काम किया, लोगों से मिला, नई नई बातें मिला, तो वहाँ काफी ज्ञान था। वो सन 2002 की बात थी। उस समय पल्स पोलियो बच्चे अपंग हो रहे थे। घर घर जाने के बाद बच्चों का क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है, किस तरीके से परेशानी आ रही है, कुछ एक्सपीरियंस मिला मुझे उस चीज से। So one moment that I will probably always remember is I was in Nagpur. I am from Bombay. I was in Nagpur. I was traveling, and my fiance called me up, and he said that there is something that is under our bed which is making a lot of noise, and we could not figure out what it was. So he woke up in the morning. He gave me a video call. I was just on my way back, and he found something from under the bed, and it was very small, and it was making a lot of noise, and we could not figure out if it was a rat's, मतलब वो rat है या क्या है, what animal it was, we couldn't figure out, but we knew that the animal was making noise. Then we went and we cleaned the animal, and it was like इतना छोटा सा, it was a kitten, and the kitten had not yet opened her eyes, and it was the runt of the litter, so the weakest of the of all the kittens that the mother had given birth to. So the mother had left it to die under our bed, basically. The kitten couldn't walk, it could not open its eyes. So I am not a very animal person or not a pet lover at all. I was always scared of animals. But when I saw that small thing, I was very confused about what to do with it. So first thing that we did is we left it outside the house for its mother to come and take it. But the mother would not come and take it, and we left it out for like 3-4 hours. And then the kitten started making noise. So, there was something that really changed in my heart at that moment, and I took it in. And now I think Zora is one of my closest family members. So now she's come here to Delhi with us. She took a flight, and we brought it here with us. Now she's 2 years old and a very big fan. You adopted it. Yes. Oh, wow. Beautiful. Yeah, this is just 1 year before me and my fiance got married. So I always believe that Zora is a gift from somebody in this universe for our wedding. So, yeah. So we went to this mood court competition in Indore, and it was a wholesome experience for us. We are law students, we are expected to take participate in moot court competition. That is like a kind of stimulus sports setup where college students go and act as lawyers and defend a particular case. So it was like kind of a new experience for us because we went to a completely different city, and so We did everything by ourselves, like Right. booking for tickets and having our hotel checked in. So everything was on us. like we were in contact with our parents, but to help them because it was the very first time we went for a city. But it's like we felt that sense of independence, Independent. the growing up, and we are confident enough to do something on ourselves. So that was a life-changing moment for us. And even when we went to like cafe hopping, it was around 12 a.m. I believe. We were roaming on roads and we were just roaming around और रात के 1-2 बज रहे हैं and it was pretty much like एक independent safety भी थी वहाँ पे और you were free to go anywhere. And so it's also like we went for a competition, but also like it was kind of trip for us as well because we are friends also. And it's just that we experienced the difference between cities in India. Like you have you can easily go and find difference like from Delhi life to in Indore life. So we actually experienced that difference, like this difference in food and everything. So it was like experiencing different parts of India. So
that was great. Mountain biking. A moment that changed my life was I just had one ride with my friend and I saw a best moment of my life. I feel like I was at heaven that time. I reached there by mountain biking. I rode total about 70 kilometers that day. And while I reached to the destination, I feel like this is the life I need to live. Then I started learning about mountain biking. So right now I'm here with my friend and teacher. कि मेरा जो बचपन से ही ड्रीम था और कह लो कि मेरी फैमिली का ही ड्रीम था टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. So all my efforts were towards it. Since I am from Bombay, there was no special वहाँ पे ऐसा कुछ climate नहीं था या कह लो कि कोई classes नहीं थी. So there was no clue as to how I will make my dream come true of becoming an IAS officer. बट समहाउ जो आप कहते हैं ना कि कायनात आपके साथ होती है, तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ एफर्ट कर करके जो एक्सपीरियंस मिलता है, लोग मिलते हैं, आपसे गाइडेंस मिलती है. सो दैट ड्रीम समहाउ फ्रक्टिफाइड एंड देन आफ्टर 3 attempts I got into Indian Corporate Law Service. I cleared the UPSC 2010 exam and now I have successfully completed 15 years of my service. I'm with the Ministry of Corporate Affairs as Joint Director Legal and Prosecution. The dream that you have and the fructification of that dream, the culmination of that dream, which changes your whole life. So that was my moment when I cleared the UPSC, of changing the whole life of me, my family, and everyone around. मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मेरी लाइफ में अभी इन 6 सालों में जो कंट्री में चल रही है, लॉकडाउन पीरियड चल रही है, कोविड जब से आई, उसके बाद से मुझे लगा डिमोनेटाइजेशन के बाद से कि टर्निंग पॉइंट आ रही है और अब अपने लिए फाइनल सेटलमेंट देखनी है. लेकिन लोग एक्सपेक्टेशन एक सेकंड के लिए भी आपको फ्री नहीं छोड़ रहे थे. ऑल टाइम 24/7 आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो क्या है, ये मारना चाहते हैं, अपने लिए यूज करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट बना के यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए. और फिर व्हेन यू आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, द फेज यू आर कमिंग ऑन, तो नहीं, सबसे पहले अपनी एक प्लैनेट, एक प्लैनेट बनाओ जहां कोई आपको आकर ये ना कहे यहाँ वाटर फाउंटेन है, यहाँ ये गवर्नमेंट की चीज है. आपको उतना ही बोलना होगा जितना हम चाहेंगे, आपको वही खाना होगा जो हम चाहेंगे. आप अगर हम नहीं चाहेंगे खाना तो आप नहीं खाओगे. आपको अगर सूप चाहिए, आपको अगर मेडिकेशन की जरूरत है, तो वो भी हम नहीं देंगे. आपको हमारे डोर पे आना होगा. यू मस्ट हैव टू कम एट माय डोर. तो इसके लिए मुझे हर हाल में अब अपने लिए एक टाइम चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहां मैं छोटा सा घर बना सकूं. ये वो टाइम, कोई भी दुनिया में आए, सबसे पहले आपकी अपनी प्रायोरिटी, मुझे वो देखना होगा. हमेशा मैंने देखा फैमिली के लिए, हमेशा देखा मैंने बच्चों के लिए, तो उनकी लाइफ देखी जा सकती है, उनकी बनाई जा सकती, लेकिन पहले तुम अपने आप को तो बना लो. तो अपने लिए होम भी, सेल्फ मेड होम भी बनानी है. आपको आप बना सकती हो. आप इतने कैपेबल हो कि आप इंटीरियर भी कर सकती हो, एक घर भी बना सकती हो. तो उसके लिए आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए. वो कहाँ है? तो मैं बस बैठे वही प्लान कर रही हूँ, अपने लिए जमीन ढूंढ रही हूँ, अपना घर बनाओ, चाहे छोटा सा ही, लेकिन छोटा सा घर, जमीन थोड़ी सी, जहाँ पे थोड़ी सी कुछ हमें एग खाना है उसके लिए हमें सोचना पड़ रहा है, हमें सूप पीनी है उसके लिए सोचना पड़ रहा है, हमें मेडिकेशन के लिए सोचना पड़ रहा है. क्यों सोचना पड़ रहा है? अगर वो सारी चीजें हम फैसिलिटी, मेडिसिनल प्लांट्स अपने घर में ही उपज करना है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सो जब मैं बहुत छोटी थी मेरी मम्मा को बहुत फाइट करना पड़ा था, या फिर नॉट बहुत लाइक उस सेंस में कि बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा, बट मेरे को माई फैमिली अलाउड नहीं था टू गो टू अ प्राइवेट स्कूल जस्ट बिकॉज मैं लड़की थी। तो जब मेरी मम्मा ने मेरे लिए फाइट करके स्कूल चेंज करवाया, उसमें मेरी लाइफ की पूरी ट्रैजेक्टरी बदल दी। और मैं शायद इमेजिन नहीं कर सकती कि अगर वो चीज़ नहीं करती तो मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे होती, या फिर मुझे एजुकेशन लेने का मौका मिलता था। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह भी काम करेगा थ्रू आउट मेरी लाइफ, आगे भी उस सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर काम करने के लिए भी। तो ये एक मेमोरी है जो मेरे साथ हमेशा रही है, बचपन से लेकर अब तक। एक्चुअली मेरी मदर ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है और मेरे एक्चुअली फादर नहीं है। तो जब से फादर नहीं है तब से मेरी मदर ने बहुत कुछ झेला है मेरे लिए, हमारे लिए। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि हाँ, हमारी लाइफ में हमारी मदर ने हमें किस तरीके से बड़ा किया, पाला है, और किस तरीके से हमारी एजुकेशन पे रिलेटेड ध्यान दिया है हर एक चीज में। और एक लड़की जो मतलब एक उसके लिए होती है कि हाँ, किस तरीके से लड़कियों के उसमें हर एक चीज देखना, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मतलब पेरेंट्स को देखनी होती है। तो मेरी माँ ने अकेले सब कुछ मतलब हैंडल किया है, और उससे हमें भी लगता है कि हाँ, हमें बहुत कुछ करना चाहिए लाइफ में। मैं फिलहाल मतलब मम्मी लोगों को छोड़ करके यहाँ पर आई हुई हूँ। जैसे मतलब कि मेरी मम्मी लोग, मैं मतलब उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी मदर लोग जो है ना वहां रहते हैं, और मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना, मतलब सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अकेली लड़की को बाहर नहीं भेज सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इतना ट्रस्ट करना करना और उसके बाद हम अगर उसके ट्रस्ट को तोड़े तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो यही चीज है कि मतलब लाइफ में मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूँ उनके लिए। Behind every face, there's a story. Behind every story, there's a lesson.